खड़ी की हुई है, हर वर्टिकल को जो है इन्होंने मिलिटराइज किया हुआ है। इसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि इस वक्त काम कर रहा है, चाहे वो हिल पे काम कर रहा हो, चाहे कम्युनिटीज में काम कर रहा हो, जो इसको फेवर करता हो। एवरीबडी इज अगेंस्ट दैट। दिस इज व्हाट माय पर्सनल टेक इज विद देयर इंटरैक्शंस एंड द वे दैट वी आर एंगेज्ड इन दिस होल प्रोसेस। Vijay, I hope you got your answer. इस डिबेट को मेरे ख्याल इस डिबेट को रहने दें. I think जो people who are directly involved in this, let them speak up before we people make any comments on it. हमें move on करना चाहिए. मैं भी कहना चाहूँगा, I have maybe another 10 minutes and then I have to leave. मेरी एक और meeting है, तो maybe we can move on to something else if there's any other questions. Yes, I think we will move on. Adil, question का answer बहुत foggy हो गया, but anyways, and for another time. Next is, I think, Saboot, please go ahead. जी बहुत बहुत शुक्रिया. I just want to add something related to this. देखिए, जहाँ तक पाक पैक का ताल्लुक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह I joined it last year जब they were having a day at the Capitol Hill. It's a long journey that they have done in the past 2 years. और अभी भी आप देखें जो डॉक्टर उमर फारूक है, उनके one of their board members, he voted and endorsed Kamala Harris and Biden, but the rest of PAC had endorsed as a group, as a organization, they endorsed Trump. तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हैं. अब उनमें से कोई अगर एक किसी ने जाके वहां पे मुलाकात कर ली है, तो I think Dr. Uzma Ali in your program with Major Adil Raja and Colonel Akbar, she made it very clear कि जो core group है वो intact है. And देखिए, we cannot expect them to do everything, लेकिन अगर वो रिचर्ड ग्रेनेल को और ट्रंप इंतजामिया को यहाँ तक ले आए हैं कि वो रिचर्ड ग्रेनेल खुद कह रहा है फ्री इमरान खान एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड. So that's huge. Let's focus on that. तो जहाँ तक पाक पैक का मामला है, I just became a full member. I renewed my membership. और that's what I have written in my email to Dr. Uzma कि ये जो है, हम बहुत खुश हैं कि आप जिस ट्रैक पे इस पे पाक पैक को लेके जा रहे हो, तो इसको हमें फ्री इमरान खान एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, ये बहुत जरूरी है. तो आई जस्ट वांटेड टू बट सबूत प्लीज, मैग्नेटिस्की सैंक्शंस भी बहुत जरूरी हैं पाक पैक की तरफ से तमाम लोगों को ज्वाइन करने में, सजाद बरकी साहब को ज्वाइन करने में. दैट इज ऑल आई हैव टू से. थैंक यू. जी बिल्कुल राइट. Magnitsky should be imposed and activated on our generals in Pakistan. Yes, Alpha, go ahead. फिर Arshad, फिर Raja. I'm so sorry. When Akbar Bhai conducted that interview, I recall Dr. Ali saying, Uzma Ali, it's a part of their bylaws. I think there's something in their bylaws which they cannot do that. So no, they have to be bipartisan. They have to be bipartisan. That's what they said actually. They cannot. देखें, हम आप लंबी आप डिटेल्स में चले जाएंगे. अगर आपके बायलॉज में है bipartisan, then how did you endorse Trump? Then you should not have. In the 30-year history of PAC has never endorsed a president. Exactly. So let's not please, मैं कल इस सब्जेक्ट को छोड़ दें. जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो इनको खुद ही एड्रेस करके आई एम श्योर दे विल फिक्स इट. Thank you. Alpha, go ahead. Then do or die. I think your hand has been raised. Assalamualaikum. Thank you, Veej, and Assalamualaikum to Courage. Birdie, zabardast aapki space ho rahi hai. You have very distinguished guests, mashallah. Adil Bhai, Akbar Bhai, and Sajjad Bhai. You guys need to come more often, and you need to come together, ताकि we get the real news and the true news. Okay, I think at this point, all Pakistanis are just so sick and tired of ये rumor mills and these lying news, false news, fake news. बहुत हो गया, और हम लोग थक गए हैं decipher कर कि ये खबर सही है या ये खबर गलत है.
So I like the fact that आप लोग तीनों जो है ना, you stick to the truth and you relay the truth as it is. और सजाद बरकी साहब का तो ये है कि आपका तो सल्यूट है कि आपने जिस तरह यूनाइटेड सबको रखा हुआ है. So anyway, तो I just wanted to ask, मैं एक्चुअली एक स्टेटमेंट देना चाहती थी. सीमिया पर शी इज डाउन, अभी नहीं है बट आई नहीं थी, कि उन्होंने कहा है कि खान साहब को आई थिंक वेल ही शुड बी रिलीज. एक्चुअली ही हैजंट डन एनीथिंग. तो उन्होंने ये ट्वीट की थी कि ही इज ऑलरेडी मतलब आउट ऑफ जेल, हाउएवर ही इज स्टिल in the actual physically he's still there because he's demanding के सारे जो prisoners जिन्होंने illegally incarcerate करे हुए हैं उनको निकालें ये लोग. तो जब तक ये नहीं होता खान साहब नहीं निकलेंगे जेल से, तो which is an awesome thing. और ये हम लोगों को खान साहब को this is the time के सारे हम लोग जितने भी हैं, especially आप लोग जो distinguished guests हैं जिनके इतने million followers हैं, आप लोग प्लीज ये पुश करें. आई थिंक खान साहब को हमें बैक करना चाहिए सारों को, ये कह के निकालो आसिम मुनीर, तुम सबको निकालो जेलों में से जिनको तुम लोगों ने डाला हुआ है. सारे पीसफुल सारे इनोसेंट लोग हैं और उन लोगों को सबको निकालो. एंड आई थिंक हम लोग एज ए यूनाइटेड हमें ये फोर्स बनानी चाहिए और ये हमें ट्वीट करनी चाहिए और हमें हैशटैग बनाने चाहिए कि निकालो सबको निकालो. तो फिर तभी हम लोग जो है ना ये बात आगे बढ़ेगी. तो that is the statement that I wanted to make. और दूसरा ये कि प्लीज हेयर से पे के फला ने क्या कहा, फला we shouldn't base our spaces on that कि इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, until like you guys said कि facts जब तक नहीं हो हम लोग श्योर नहीं हो. पाक पैक जो है वो इतना एक्सीलेंट काम कर रही है, उन्होंने जो काम किया है कोई भी नहीं कर सकता. आई मीन लिटरली दे यूनाइटेड स्टेट्स में रह के उन्होंने जो रीच आउट किया है टू द करेक्ट पीपल, टू द राइट पीपल, राइट रिसोर्सेज, राइट सोर्सेज, तो हैट्स ऑफ टू देम. तो एक दो अगर वो मिल भी लिया है तो आई गेस इन अ डेमोक्रेसी यू कैन मीट एंड यू कैन, that's what democracy is all about. So perhaps वो जो मिला था वो इसलिए मिला था. Actually we need to ask the person that met him. So maybe it was for the good of for the country. So for good for Khan Saab on his terms मिलाओ. You never know. So जब तक कि सारी चीजें clear नहीं हो जाती, we shouldn't assume and we shouldn't put negativity in all these things. So that's the statement that I wanted to make. Thank you all for giving me the mic. Thank you, Alpha. I just want to correct what Heather Mehdi, just created panic. So we just wanted to have clarity before spaces are conducted on this and new narrative is created because people think otherwise and military puts their doubts there to capture the narrative or to misinterpret or interpret Heather Mehdi's tweet in some other way. So अच्छा हो गया ना कि बरकी साहब भी इधर थे, अकबर भी इधर थे, आदिल भी इधर थे. We nipped it in the bud, Yeah, we did nip it in the bud. और इस पे तो discussion भी नहीं होना चाहिए because we don't want Pak Pack being the name taken in any vain. So inshallah it won't be, and we support our Pak Pack folks and उन लोगों ने जो काम किया है, like I said, it's irreplaceable. Thanks. I'll just be a second. I want to correct a little bit what Alpha said, what I said. But Sajad bhai chale jaye, unka time important. And sorry, Courage, मैं बीच में Please, सीमी आप बोल लें, please. नहीं, सजाद भाई को करने दें, मैं उनके बाद. नहीं, मैंने एक्चुअली आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन माय पोजीशन ऑन दिस होल पाक पैक इशू. मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूं. मैं समझता हूं कि जो लोग प्रिंसिपल्स जो इन्वॉल्व्ड हैं वो खुद ही इसको एड्रेस करेंगे. हम लोग इट्स नॉट फेयर कि वी शुड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी एल्स. It is between Heather Mehdi and Pak Pack, and I think they both are capable of taking care of it. Or I don't think it's a big issue anyway. कोई बड़ी बिग डील नहीं है. अगर कोई हो भी रही है थोड़ी हमारे पे मेरे पे पता नहीं कितने इल्जाम है. कल परसों मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी $180 मिलियन एक शख्स अमेरिका में खा गया है और वो इमरान खान का रिश्तेदार है और वो पीटीआई वहां पे रन करता है. मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं. तो आई काइंड ऑफ लाफ्ड एंड सेड ओके थैंक यू, व्हाट एल्स कैन आई से. तो आई मीन कमेंट्स होते हैं जी, क्रिटिसिज्म होता है. जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप पे इल्जामात भी लगते हैं और आपको उनका जवाब भी देना होता है. तो वी यूज्ड टू इट. कोई ऐसी बात नहीं है.
थैंक यू। आई थिंक डू और डाई, आपका हाथ बहुत देर से खड़ा है, प्लीज आप बोलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टोटली एग्रीड सजाद भाई. Basically, as Alpha said and most of you said, we shouldn't talk too much about Parkpack. They've done wonderful job, and that's it, right? We just leave it at that. सवाल मेरा, बल्कि कमेंट और सवाल मेरा ये था, जिसमें मैं बोलना चाह रहा था. देखें, हमें नजर रखनी चाहिए जो हमारी एक्टिविटीज आ रही हैं, और मेजर इवेंट that is coming up is January 22nd congressional hearing. इस पे हम बहुत बात ऑलरेडी कर चुके हैं. टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रम्प जो है वो इनॉग्रेशन हो रही है 20th को, 15 को यूके पार्लियामेंट में, जैसे आपने जिक्र किया कि वो काफी बड़ा इवेंट है, और आई थिंक बिग नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, राइट? आई थिंक 30, 40, 50 MPs are coming. So 22nd will be kind of an epic thing. So I think we need to take advantage of it, which I'm sure you guys are planning, Barki bhai and everybody else, right? My only thing is, uska jo outcome hai, what exactly are we expecting as an outcome from that hearing on 22nd? I'm sure it's obviously for awareness for this congressman, right? I mean, we need to make them aware, but are we expecting any tangible outcome from that hearing itself? That's one of my questions. बाकी जो मेरा ये कमेंट ये था कि जो हम लोग जितने लोग स्पेस में बैठे हुए हैं, लोकल कांग्रेसमैन को हमें, आई थिंक वी नीड टू reach out to them and ask them to attend or at least support that congressional hearing. And that's about it. And one last thing is, Magnitsky Act का जो जिक्र हुआ है, are there any names in that congressional hearing? Are we talking about anybody outside of Asim Munir? For example, Qazi Faiziza, his name should be there too when it comes to Magnitsky Act. So is his name there? That's my other question. Thank you very much. जी बिल्कुल, ये सारे नाम आएंगे, आप फिक्र नहीं करें. कोई इसमें सिर्फ नहीं कि सिर्फ एक आसिम मुनीर का नाम नहीं है. जैसे राज साहब ने भी पहले कहा, एक बड़ी लिस्ट है. इसमें ब्यूरोक्रेट भी होंगे, इसमें पॉलिटिशियंस भी होंगे, इसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स भी होंगे, जुडिशरी के लोग भी होंगे, ये सब होगा. कमिंग बैक टू दी कंग्रेशनल ब्रीफिंग जो है हमारी, देखें उसका एक तो आपने जैसे खुद ही कहा कि उसका पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, और फर्स्ट हैंड ताकि उनको पता लगे. वहां पे वीडियोस भी हम दिखाएंगे, एविडेंस भी दिखाएंगे ऑफ 26 नवंबर. But more than that, what we are working on right now is कि हम इसके बाद we want to bring a binding congressional resolution. उस पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी आजकल, और हम ये चाहेंगे कि ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे मेंबर्स, कांग्रेशनल मेंबर्स तक पहुंच जाए कि जब हम बाइंडिंग रेजोल्यूशन लेके आने की कोशिश करें तो वो लोग हमें सपोर्ट करें. और अगर हम वो इंशाल्लाह, उम्मीद है कि अगर हम उसको सक्सेसफुल हो गए बाइंडिंग रेजोल्यूशन में, तो उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि वो वाला रेजोल्यूशन फिर होगा जिसपे के कांग्रेस करेगी, मजबूर करेगी स्टेट डिपार्टमेंट को कि अब आप इस पे एक्ट करें, आप इस पे पूरा जो हमने, इट विल बी लाइक एन ऑर्डर फ्रॉम कांग्रेस कि अब आप ये काम करें. तो दैट्स व्हाट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंशाल्लाह. Okay, great. People who have already asked their questions, please can you release the mic? Irshad, go ahead, and then after Irshad, Ome. थैंक यू जी, शुक्रिया आपका. और सबको अस्सलाम वालेकुम. खुसूसन बरकी साहब भी मौजूद हैं, तो मैं उनकी मौजूदगी में सवाल तो वो जो आदिल राजा ने सारे कर ही दिए हैं जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं उनको इंडोर्स कर देता हूँ. एक तो वही सैंक्शंस वाला मामला है, उस पे तो बिल्कुल ही आप लोगों का कतई तौर पे जो ना बैकआउट नहीं करना चाहिए किसी भी स्टेज. दूसरा जो है वो सवाल मेरा बरकी साहब से क्वेश्चन कि जब ये नए आइन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो फिर आपको आइन साज असेंबली के इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में सारा कुछ देना पड़ेगा कि आप किस प्रोग्राम और मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सारी चीजें फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और दूसरी बात इसमें सबसे अहम ये है कि जो मैं पहले भी कर चुका हूँ आपसे बरकी साहब, आप क्योंकि उनकी टॉप हायरार्की में है पीटीआई की, तो उसमें जो लोग अब इस वक्त बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर या आपके उहदों के ओर बैठे हुए हैं, वो जिस हद तक कॉम्प्रोमाइज है वो तो आपके इस प्रोग्राम को आगे लेके आप चलने के काबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है.
तो जो कुछ उन्होंने 26 नवंबर को किया या उससे पहले करते रहे हैं, उस सारी चीजें सबके सामने है। ये सबसे ज्यादा अहम बात है कि आप किन लोगों के साथ आगे क्या तब्दीली लाना चाह रहे हैं। इसलिए ये दूसरा मेरा क्वेश्चन हो गया, इस पे जरूर आप बात कीजिए। और खुसूसन आई लव टू टॉक टू बोथ पर्संस। कोर्ट मार्शल ग्रुप जो है उनको मेरी तरफ से बड़ी बड़ी खराज तहसीन कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मीडिया को, पाकिस्तान के जो सरकारी और गैर सरकारी मीडिया सबको लमरेट किया हुआ है। उस पर मैं उनको खुसूसन खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारा कोर्ट मार्शल ग्रुप है और उसके साथ डॉक्टर मुइज़ पीरजादा और चंद और दोस्त हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने नया नाम दे दिया इनको। वेरी गुड। अब आपको हम कोर्ट मार्शल ग्रुप ही कहेंगे, पेशेस को भी। आई थिंक सो, आई थिंक अच्छा नाम है ये। We don't mind at all. Thank you. It's a medal of honor actually. जी देखें, एक दो बातें क्विकली मैं कह देता हूँ। एक तो ये जो नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, ये मेरी डिमांड एक्चुअली नहीं है, दैट्स नॉट आवर पार्टी पोजीशन, ये राजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो इसमें मेरे ख्याल बड़ी जान भी है कि हमें बहुत सी चेंजेस चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑब्वियसली वो होंगी, या तो नया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होगी, लेकिन अगर हमने उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, अमेंडमेंट्स लाने हैं, तो वी नीड अ 2/3 मेजॉरिटी। तो इंशाल्लाह आई थिंक उसकी तरफ काम किया जा रहा है। दूसरी जो आपने बात की कि अब लोग उसमें हमारे पास भी बैठे हैं जो हम समझते हैं, आप समझते हैं कि शायद कॉम्प्रोमाइज है, तो देखें इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो है उनको रिलीज किया जाए। हम उनकी लीडरशिप में हम अपने डिसीजंस जो है वो कर सकें। और मेरा ख्याल है कि खान साहब को पिछले 1-2 साल में जो कुछ उन्होंने देखा है, काफी हद तक उनको अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का, अपने जो उनके साथ लोग काम करते हैं उनका अच्छी तरह उनको अब समझ आ गई है कि कौन क्या कर रहा है और वो किस काबिल है। तो आई एम श्योर कि मैं बड़ी उम्मीद भी है कि वो अब नेक्स्ट टाइम जब डिसीजंस करेंगे तो अच्छे बेहतर डिसीजंस करेंगे, और ये रख के अपनी नजर में कि कौन लोगों ने इन 2 सालों में क्या रोल प्ले किया है। तो आई एम श्योर देयर इज नीड टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी सॉर्टेड आउट, और होगा इंशाल्लाह। जी, Mr. Mia Malik, can I speak now, जी? Who is this? Ume? This is Mia Malik. Okay, go ahead. I was here. Yes, please. आप पहले कमेंट कर लें अपना। जी सर, इतना कह रहा था कि we should not forget Bajwa, he's the main culprit, and also Bandial, the Chief Justice of Stand. They are the main people. You know, the problem started from that time. Bajwa, and number 2 is Bandial, Chief Justice Bandial. And also one more, my suggestion is, whenever they are calling everybody to come to Islamabad or get together in tea talk and all, they should not do that. हमें करना ये चाहिए कि every city, every place, and every place in a road, main road, and everything should be blocked. If they have anything to do. इसमें क्या होगा, लोगों को जो इतनी दूर से लाना और फिर उनके ऊपर इतने सब कुछ ये होना, अरेस्ट होने और फायरिंग, ये इससे बच जाए पाकिस्तान। ये they can close this whole Pakistan like MQM used to do it. All Karachi closed, everything closed in the Pakistan. So they should start doing that, not bringing everybody to come to T-Chowk. That's it's like making everybody moving from different cities and everything. And in the end, वो फिर इतने problem में आ जाते हैं सब लोग. So that's all my suggestion. Thank you. Okay, thank you. Simi Appa, you want to make a comment? जी मेरा कमेंट थोड़ा सा लंबा है। सजाद भाई आप जा रहे हैं या अभी आप हैं यहाँ पर? मैं जी आप कमेंट करें तो बस उसके बाद आई विल लीव। अच्छा, मेरा थोड़ा सा लंबा है, तो अगर बीच में जाना हो तो प्लीज चले जाए। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। तो मेरे जरा कनेक्टिंग द डॉट्स हैं। एंड द थिंग इज दैट डोनाल्ड ट्रम्प 2 चीजें चाहता था। एक कि हॉस्टेजेस रिलीज हो जाए वहां पर हमास से, और दूसरा इमरान खान का। एंड हमारे माइंड में यही था कि इमरान खान इज फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प का रिलेशनशिप पाकिस्तान से अच्छा था। दैट वाज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज कि डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू हैंग बाइडेन बिकॉज
टर्की में कोई पीस टॉक्स चल रही थी. I don't know the date, supposedly when Biden was coming on, और वो रशिया के साथ पीस हो जाता शायद, but Biden didn't want it. तो हो सकता है कि टर्की के अर्दोगन को कुछ पता है, हो सकता है इमरान खान को पता है, क्योंकि जिस दिन अटैक हो रहा था उस दिन इमरान खान was talking to Putin. So maybe Trump wants Imran out so that Imran can share, at least for Donald Trump can share कि भाई अगर उसे कुछ पता है तो वो चीज वो बड़ी जल्दी करना चाहते हैं. And as soon as they get hold of State Department and Pentagon, they want to go through the papers, they want to find out whatever they can, they want to bring it out कि देखो ये जो deep state है, ये जो डीप स्टेट है ये regime change भी कराती है, यूक्रेन की वॉर भी इन्होंने कराई, और मेरा भी इलेक्शन उन्होंने हरवाया. They are the problem, and of course Biden is also the problem. So उसकी बेइज्जती कराना चाहता है. So that's where Imran Khan fits in the picture. And so my feeling is कि अगर हमास ने साइन कर दिया है और इजराइल ने इतना उनके ऊपर डाला है, तो फिर मैं स्पेक्यूलेट कर रही हूँ कि आज रात या आज जो सुबह होगी, आसिम मुनीर is I think Imran Khan is out as far as I'm concerned. But Imran ने शर्त लगाई है कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे सारे लोग नहीं निकलेंगे, which was very right of him. And so I personally at this moment think कि ये हो रहा है, because Trump ऐसा पता नहीं है जो छोड़ेगा इस बात को. And I think it's very important for him कि, and maybe he wants to talk to Imran, you know. This is just my viewpoint. And then the other thing I want to say is that मुईद पीरज़ादा ने अपने आइकॉनोक्लास्ट पे लगाया वो जो है, मैं उसका हमेशा नाम भूल जाती हूँ, जो इंटरप्रेट का ब्लॉग का वो है निक, जो हमेशा इमरान खान पे आर्टिकल्स करता है पीटीआई. रायन ग्रिम. तो रायन ने भी थोड़ा सा उस बात को हिंट किया जो मैंने कहा. रायन ने कहा कि बाइडेन के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं कि जो पीस कॉन्फ्रेंस टर्की में हुई थी उसके ऊपर क्या हुआ था और वो क्यों नहीं हुई, एंड व्हाई डिड द वॉर स्टार्ट. बट मुईद ने उसको ज्यादा बोलने नहीं दिया, एंड आई डोंट नो व्हाई, एंड मुईद एंडेड द इंटरव्यू वेरी क्विकली. सो उससे मुझे हुआ कि अच्छा जो बात मुझे पता चली है वो है, देयर इज समथिंग टू इट. तो वहां से मैं ये कर रही हूँ. एंड देन एक और चीज है कि वो जो जेफरी सैक्स हैं जो कोलंबिया के प्रोफेसर हैं, उन्होंने आके कोई 4-5 दिन हुए जज निपोलिटानो है जो फॉक्स न्यूज पे आते थे, अब वो यूट्यूब पे अपने करते हैं वीलॉग्स. तो उन्होंने उनको इंटरव्यू किया तो उन्होंने दिखाया एक वीडियो जो कि ऑक्सफोर्ड में टेप हुआ. आई डोंट नो व्हेन, बट वो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो उन्होंने एक गाली निकाली, सन ऑफ समथिंग, टू बीबी नेतन्याहू, और कहा यही वॉर्स कराता है. और कुछ अमेरिका की वॉर्स होती हैं जो बगैर अनाउंसमेंट के होती है और कुछ ऐसी होती है विद अनाउंसमेंट, और जो सीरिया वाली थी वो विदाउट अनाउंसमेंट थी, और ये सब यही कराता है. And it was an excellent piece, 1-2 minute का. It's on YouTube if you want to go see. And then Soldier Speaks put the same thing, almost the same, but spoken at a different venue. So I actually picked up both, I think, but I'm not positive. और फिर एक है I'm sorry, I'm not remembering Jason Hinkelman, I think. तो वो पैलेस्टाइन की बहुत बातें करता है और लोग कहते हैं कि ये रशिया से पैसे लेता है. तो उसने अभी आज कहा समथिंग टू दैट इफेक्ट कि उसने कहा कि ट्रंप ने वो वीडियो जेफरी सैक्स वाला अपनी साइट पे लगाया और बीबी नेतन्याहू was going to fly for the inauguration and he has cancelled, he's not coming. So I'm connecting all those dots and also saying कि भाई कितना हमास पे प्रेशर होगा और बीबी नेतन्याहू पे कि ये साइन करो. तो imagine if Donald Trump wanted that done, imagine then कि वो आसिम मुनीर पे कितना प्रेशर डाल रहा होगा if he really wants Imran out, and I think he really wants. So that's where I'm coming from.
Thank you. I think काफी आपका बहुत सी connect जो आपने dots किए हैं, a lot of them make sense. You know, we are all looking at it very keenly कि ये चीजें जो हैं, obviously there is always a whole sense of things that are not in the front, जो सामने नजर नहीं आती हैं, और खास तौर पे इंटरनेशनल मैटर्स में. एंड ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि खान्स विजिट टू रशिया डिड बिकम एन इशू एट दैट टाइम. इट वाज यूज्ड अगेंस्ट हिम बड़ी डिलिबरेटली. बड़ी दफा ये बात क्लियरली कही गई है कि बाजवा साहब जो थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप वहां पे जाएं, और जब वो हो गया तो उसके बाद में उन्होंने ऐसे क्लेम किया कि जी ये तो इमरान खान का अपना ही फैसला था, एंड ही वाज नॉट इन एग्रीमेंट विद इट. तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इंशाल्लाह निकलेंगी, खुलेंगी. और अगर आप वाकई समझती हैं कि ट्रम्प इज दैट committed to bringing Biden in the open on these issues, तो मेरा ख्याल है इमरान can help him with that, and that may become a factor. So hopefully let's. Ayman, go ahead. मैं जल्दी से कह दूं, I wanted to say inshallah and mashallah, and I fully feel like this is happening. Yeah. चले जी, इसके साथ ही अगर मुझे सजाद भाई, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे really quickly, please. I'm sorry. जी, go ahead. I just have a quick question from you, and then आप जब चले आएंगे तो मेरा आदिल भाई से सवाल है, so I can wait for that. मेरा आपसे सवाल ये है कि the last time I heard you in a space, I think it was around 2 weeks ago or so, you said that there's a lot of pressure on you guys for fundraising, and then you said now we are actually asking our parliamentarians sitting in Pakistan to give up their part of their salaries for this fundraising because, you know, I mean, it's so hard for us to have all the burden. उसकी क्या update है, क्या हुआ उसका? वो बिल्कुल जी, वो उनको कहा गया है, सारे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एक नोटिस इशू किया गया है कि वो सारे पैसे जमा कराएं, एंड दे आर डूइंग इट. क्योंकि देखिए पार्टी को चलने के लिए फंड्स की जरूरत तो है, और दैट इज वन ऑफ द रीजन. आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द पीपल हु प्रपोज्ड दैट कि भाई आप ये सारा का सारा बर्डन हम ओवरसीज पाकिस्तानीज पे तो नहीं डाल सकते कि जी पार्टी के सारे फंड्स जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही जमा करें. जो वहां के हमारे इलेक्टेड और कैंडिडेट्स जो हैं दे शुड आल्सो बेयर सम बर्डन. तो आई एम वेरी ग्लैड कि उन लोगों ने फिर एक लेटर इशू किया, एंड द मनी इज कमिंग इन फ्रॉम दोस पीपल. तो हम भी अपना काम जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं. Okay, anyone has question for Sajad Barki because he's leaving, तो please आप mic खोल के पूछ लें, otherwise it's Umay's turn. जी quick question. सबूत को क्वेश्चन है जी, सबूत आप बात कीजिए जी. थैंक यू सो मच. तो सजाद भाई से भी क्वेश्चन है, और अकबर भाई और आदिल भाई भी इस पे इनपुट दे सकते हैं. क्वेश्चन ये है जी कि हमें अब जो 33 माह में जो तमाशा पाकिस्तान में हुआ है, और जिस तरह से इदारों को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, चाहे वो नैब है, चाहे वो FIA है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, अदलिया है, तो अब जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या मेजर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उसके हमारे पास उस पे काम हो रहा है, मॉडल्स पे भी, ये मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 के हम उस रियलिस्टिकली इसको अचीव कर सके. क्योंकि हम अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम अब वेट करें खान साहब आए और फिर उसके बाद सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए जो काम जो है वो कुछ उस पे किया जा रहा है इन मॉडल्स के ऊपर. बहुत शुक्रिया जी. मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PTI मैं आपको बता सकता हूं कि मैं आई विश कि हमारा इतना भी इस वक्त फोकस होता है इस चीजों की तरफ और हम ये कर सकते. मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉपर इस पे कोई ऐसी कोई कमेटी है या कोई है जो काम कर रही है. क्योंकि देखें अभी जो सबसे बड़ा फोकस है वो ये है कि इमरान खान को रिलीज कराया जाए, अपनी गवर्नमेंट जो है उसको वापस रिस्टोर किया जाए, और देन इंशाल्लाह एज वी गो अलोंग ये सब चीजें जो है ये करेंगे. होपफुली विल डू इट. तो चले जी, मुझे इजाजत दें. थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट एंजॉयड बीइंग विद यू गाइस. और शुक्रिया सजाद. थैंक यू बर्की साहब. थैंक यू so very much, sir. Thank you. Thank you so much for coming on such a short notice. Really, always a pleasure. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum जी. और आते रहें प्लीज. ओके, मैं गो हेड. जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को.
मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, मुझे भी जाना था, बट इट्स ओके, सजाद भाई को जाना था तो क्वेश्चन तो खैर था उनसे भी, लेकिन इट्स ओके। मुझे बिल्कुल, मैं ब्लंटली कहती हूँ, यहाँ पर आप लोग सबकी देखें, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ और मुझे किसी को जवाब नहीं देना सिवाय अपने अल्लाह के। जब तक कि आप लोग ये ओवरसीज पीटीआई का इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, इसको अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते। ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है कि एक बंदा किसी से मिल लिया जाके, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को नहीं पता, यहाँ पर कनाडा में स्पेशली पिछले दिनों में जो इंडिविजुअल काम करते रहे, उनकी इनकी तकलीफों के बावजूद उनके सारी कोशिशों पे पानी किस तरह फेरा गया, कितनी ज्यादा हम लोगों ने मेहनत की थी और इन लोगों ने इसके ऊपर पानी फेरा है और इसको छुपाया जा रहा है। मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रही हूँ, आदिल भाई, अकबर भाई, आप लोग प्लीज इस बात को अंडर द कारपेट नहीं जाने दें। जब तक कि ये मामला रिजॉल्व नहीं होगा, इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते। जब आप कहते हैं कि पुराने कचरे से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, तो क्या आप ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं? नहीं, पाकिस्तान के बाहर जितने ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के बैठे हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन there is a big hole, there is a big loophole there, और अगर जब तक इसको नहीं देखा जाएगा, हम लोग यहीं फंसे रहेंगे, क्योंकि ये चीजें यहीं से फंस रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन करना बड़ों का काम है। मेरा बताना मकसद था, क्योंकि मुझे किसी से कोई लेना है ना देना है, ना मैं किसी को जानती हूँ ना कोई मुझे जानता है, लेकिन मैं जो चीजें 3 साल से कर रही हूँ अपने तौर पर, उसको सबूताज किया जाता है बाकायदा तौर पे। मुझे रोका जाता है हर जगह से और मुझे निकाला जाता है हर जगह से, मेरे बेइज्जती करके निकाल दी जाती है ताकि मैं कुछ ना बोलूं। लेकिन मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। मरना सबने एक दिन है। मेरे को फोन कॉल्स करते रहो, कुछ भी करते रहो, मैं डरती नहीं हूँ किसी से अल्लाह के सिवा। तो जो भी इमरान खान के साथ है ना, वो कभी डरेगा नहीं। तो इंशाल्लाह बस ये कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहन, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, इस पे बात करना चाहूंगा। आपकी हिम्मत को सलाम है, कोई ब्रश अंडर द कारपेट करने की बात ही नहीं है। पीटीआई ओवरसीज का जो मेन इशू है, सजाद बरकी साहब से हम ये इसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी डिटेल के अंदर कर चुके हैं। मेन सजाद बरकी साहब को लगाया भी, जो सेक्रेटरी ओआईसी लगाया गया था, वो इसीलिए लगाया गया था, इमरान खान साहब ने इसलिए लगाया था कि पीटीआई ओवरसीज के अंदर, यहाँ पे जाजेब भाई भी बैठे हुए थे, उनको बोलने का मौका मिलता तो वो भी मुझे मेरी बात को कंफर्म करते। यहाँ पे इशू ये है कि जिन लोगों को पार्टी की पोजीशंस मिली, उन लोगों ने, एक तो सिस्टम इनका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। खुद मेंबरशिप कोई भी खरीद ले, वो खुद पे करके, उनकी जगह वोट भी खुद डाल के लोग ऑफिस बेरर इसलिए बने कि पीटीआई अपनी पावर में जब आई तो उन्होंने अपने काम जाती कराने थे, जाती कामों के लिए वो बने। उन्होंने जो आईएसआई के लाइजन ऑफिसर्स थे, जो बैठे हुए थे जिस भी मुल्क में थे, उनसे राब्ते किए, राब्ते करवा के अपने काम करवाए और उनके मोल्स के तौर के ऊपर या उनके साथ एक कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया। और उसके बाद जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वही लोग टाउट्स बन गए आईएसआई के, अपने छोटे छोटे, अपनी, वो कहते हैं कि जी मुर्गी के पीछे अगले की भैंस मारने वाला काम इन्होंने शुरू किया, पूरे कौम के खिलाफ इन्होंने काम शुरू किया। ये अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपने जाती इनके मकासद है जिनके लिए बैठे हुए हैं। और इसी मकसद के तहत जो है वो सज्जाद बरकी साहब की अपॉइंटमेंट इमरान खान ने की, ये जानते हुए कि ये पूरी इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे बड़ी हैवी किस्म की हुई हुई है। और आप लोगों का तो कोई इतना मसला है नहीं, अमेरिका और कनाडा में, तो कनाडा में है, जरूर है, मैं मानता हूँ। नदीम अंजुम साहब से आपके सो कॉल्ड ऑफिस बेरर एक्स डीजीआईएसआई से मिलकर उसकी इन्वेस्टमेंट को हमने सुना है कि मुबैना तौर के ऊपर आजकल फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको सेटल कर रहे हैं वेस्टर्न कनाडा के अंदर। अमेरिका में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना यूरोप और यूके के अंदर प्रॉब्लम है, खास तौर के ऊपर। अपनी जात के लिए ये जो काम कर रहे हैं और अपनी चौधराहट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको जो है ओहदे खत्म किए इमरान खान ने और सज्जाद बरकी साहब को टास्क दिया। आप हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह इमरान खान साहब को आने दें। इस वजह जो ये जितने भी लूप होल्स हैं ये बंद करने बहुत जरूरी हैं। उसको ब्रश अंडर द कारपेट बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल। बस रिमेन स्टेडफास्ट, हिम्मत ना आप हारें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और सज्जाद बरकी साहब चले जरूर गए, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये बात पता है और वो मानते और एक्नॉलेज करते हैं इस बात को।
और इसी वजह से वो जो है वो सोलो फ्लाइट उन्होंने पकड़ी हुई है अपने चंद काबिल एतमाद साथियों के साथ, जिनके ऊपर वो एतबार कर सकते हैं, जिनकी कोई जाती मकसद नहीं है। तो आई थिंक वी शुड हैव फेथ इन इमरान खान, और इसलिए उनको टारगेट किया जाता है सज्जाद बरकी साहब को कि इमरान खान की फैमिली है और ये और वो, उनको टारगेट इसी वजह से किया जा रहा है ना कि जी पता नहीं कितने $1 मिलियन जो है वो खा गया। ख्वाजा आसफ जो बकवास कर रहा है टोटली नॉनसेंस है, लेकिन जो उनकी लिमिटेड कैपेसिटी में जो वो काम कर सकते हैं, सज्जाद बरकी साहब हो गए, आतिफ खान साहब हो गए, और भी कुछ लोग हैं जिनके हम नाम नहीं लेना चाहते, उनके पीछे पड़ जाएंगे लोग, या यूके और यूरोप के अंदर खासतौर के ऊपर। तो लोग जो हैं वो आप जैसे लोग हैं, वो नीयत के साथ काम कर रहे हैं, और ये जो आपको फोन करके रोकना चाहते हैं ये आईएसआई के टाउट्स हैं सारे के सारे, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। नहीं पता तो ये विजी भी यहाँ पे हैं, करेज बैठी हुई है, ये नदीम अंजुम से जाके मिल रहे हैं लोग, और उनसे पूछे तो कहते हैं हाँ नहीं हम तो जानते ही नहीं है। ये आपके लोग दरमियान में ऑफिस बेरर अपने आप को कहते हैं, सेक्रेटरी कोई कहता है, कोई अपने को कुछ कहता है, हर किसी ने अपने साथ वो पुराने जो खांचे फिट किए हैं और अपने आप को इंट्रोडक्शन, अब दोबारा इमरान खान की गवर्नमेंट आने वाली है तो दोबारा अपने पुराने ओहदे जो है उनको जो है ना निकाल के दोबारा से पॉलिश मार रहे हैं, पित्तल पॉलिश कर रहे हैं। डोंट वरी, ये पुराना कचरा है, पुराने कचरे से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। वी नो दैट एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ठीक है ना जी, खान साहब के वापस आने के बाद भी वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। वी विल टॉक, कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, वो हम अदा करेंगे, एंड वी विल स्पीक, डोंट वरी, वी आर विद यू। थैंक यू। आदिल देखें, आदिल वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। सो जो भी हैदर मेहदी ने किया ठीक है, यू डोंट टेक एक्शन, बट यू नो he is sort of a whistleblower. He has said we have a red flag now. Whoever this Dr. Uzma is, who's leading the park, नहीं डॉक्टर, let's be fair and square. Dr. Uzma is I think वो तो अभी आई हैं, she's just taken over and she's I believe very sincere. And I also believe not only Dr. Uzma but Dr. असद मलिक के, मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने डॉक्टर असद मलिक ने उनको कहा है कि इस किस्म का मेरी मुलाकात नहीं हुई, और उनको उनकी एफर्ट्स को उनको तोड़ने के लिए वहां पे राव कामरान साहब को लॉन्च किया गया है। तो मेरे ख्याल में वी नीड टू सपोर्ट देम। हाउस रेजोल्यूशन 901 ये डॉक्टर असद मलिक ने, डॉक्टर उज़मा ने की है, उन्होंने पाक पैक को ओवरटेक होने से बचाया है। दरमियान में लोगों के इंटरेस्ट जरूर मौजूद हैं, जहां पे दो पांडे हों तो वो भी खड़कते हैं यार, ये तो इट्स अ वेरी ह्यूज ग्रुप, तो वो खड़केगा आपस में। प्लीज डोंट रीड टू मच इनटू इट, और मेरे ख्याल में हमें अपने इंटरनल डिफरेंसेस को इंटरनली सॉल्व करना चाहिए, एंड वी डू नॉट नीड टू डैमेज द कॉज बाय टॉकिंग डायरेक्टली टू रिचर्ड ग्रेनल एंड saying him one thing or saying something else to the other guy. Please have faith, please. मतलब ये मेरे ख्याल में we are already we need to hold our horses, and I believe and I appreciate the efforts of Dr. Asad Malik and Dr. रहमान अली। पहला नाम मैं उनका हर दफा फिर इधर ऊपर नीचे कर जाता हूँ, क्या नाम है डॉक्टर साहिबा का? डॉक्टर उज़मा रहमान अली। डॉक्टर उज़मा रहमान अली से मेरी इंटरव्यू जब हुआ तो बड़ी लंबी उनके साथ बात हुई। शी साउंड्स वेरी सिंसियर। उनको इससे क्या फायदा है यार, वो खुद इतना जबरदस्त, उनका डॉक्टर असद हो गए, या ये होगी डॉक्टर उज़मा हो गई, या डॉक्टर उमर फारूक हो गए, बाकी जितने भी लोग हैं, they are very successful professionals, high net worth individuals. They've got no connections in Pakistan. उनको एक आध है दरमियान में जिनका बिजनेस चल रहा होगा पाकिस्तान में, और वो कहते हैं कि आदिल राजा से बात ना करो। इनको कहते हैं जरूर कि आदिल राजा से बात ना करो, नहीं तो जर्नैल हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि उनको क्या जरूरत पड़ी है, वो they are themselves very high net worth individuals हैं, बड़ी जबरदस्त उनकी प्रैक्टिस चल रही है। उनको ये काम करके दर्द सर के अलावा मिल क्या रहा है यार, इन बातों के अलावा मिल क्या रहा है? तो आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट एंड वी नीड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू फाइंड बोन्स वेयर देयर आर नो बोन्स। हैविंग सेड दैट, जो इशू है पीटीआई के अंदर वो है मसला, लोग जो पता चल जाता है ना, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी जात की नमूदो नुमाइश के लिए और सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए, अपनी कुकड़िए के लिए अगले की मज मारना चाहते हैं, वो पता चल जाता है उन लोगों का। एंड आई बिलीव कि डॉक्टर उज़मा अली एंड डॉक्टर असद मलिक आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पीपल। दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई ऑलवेज गिव अ चांस टू एवरीवन एंड दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स विद हाउस रेजोल्यूशन 901, और जो कुछ उन्होंने किया है यार वो आपके सामने है। इस तरह नहीं बंदे को जो है करना चाहिए, लोगों की एफर्ट के ऊपर सीधा पानी नहीं फेरना चाहिए, स्टेट में कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। सवाल पूछना हर किसी का हक है, सर हैदर मेहदी का भी हक है, उन्होंने सवाल पूछा है, पब्लिकली पूछा, उनको जवाब देना चाहिए जरूर, बट
we should not have involved Richard Grenell into that and everyone, you know, वो already फंसा हुआ है वहां पे, जो एल में आग लगी है वो उसके अंदर, मेरे ख्याल में वो we should sympathize with him because he should also realize कि यार पाकिस्तानी जो हैं वो look after करते हैं, क्योंकि उसका यार पूरे का पूरा जो है वो शहर जल गया है and he is directly जो उसके अंदर इफेक्ट ही है, तो हमें उनके साथ सिंपैथाइज करना चाहिए। और इस वक्त हर चीज हमें लगता है सारी कायनात हमारे गिर्द घूम रही है, इस तरह तो नहीं है ना, दुनिया बहुत बड़ी है, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, और अकॉर्डिंगली जो है तेल और तेल की धार देखते हुए चलना चाहिए, अगले से के साथ सिंपैथाइज भी करना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। वी शुड हैव अ बिग हार्ट। ये बताएं, कनाडा में पीटीआई के एक्स ऑफिशियल सुना मलिक रियाज के साथ बड़ी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पीटीआई के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे बट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में पार्टनरशिप कर रहे हैं मलिक रियाज के साथ, इसके बारे में आपको कुछ पता? देखिए एक्स ऑफिशियल जो भी करते हैं वो उन्होंने, जारी बात है, बिल्कुल पता है, मैंने सुना है, बिल्कुल जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे नाम भी उन साहब का पता है, बट यू नो इट्स हिज बिजनेस, ही वांट्स टू डू इट, ही शुड गो अहेड। एक आपके एक्स ऑफिशियल ने आप जो है वो नदीम अंजुम को सेटल किया है वेस्ट कनाडा में, उसको भी $4 मिलियन का घर, उसकी एक फैमिली वहां पे सेटल करने में। वो लोग शुरू से आए इस चक्कर के अंदर थे, हमेशा से उनका यही इंडिविजुअल इंटरेस्ट था। फॉरगेट अबाउट देम, पुराने कचरा है यार, फॉरगेट अबाउट पुराना कचरा, पुराने कचरे से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। हैविंग सेड दैट, जो लोग कर रहे हैं काम अपनी जाती जेब से खर्चा करके, आप उनको कहें कि यार आप लोगों का कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट है, आज आप सीमा आपा को कहें कि आपका कोई इंटरेस्ट है, तो बंदे को बात करते हुए सोचना तो चाहिए कि यार इनका क्या इंटरेस्ट है। ये देर वेरी वेल टू डू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स डूइंग एवरीथिंग फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, अपना जेब से पैसा लगा के नुकसान। डेथ थ्रेट्स मिली हैं डॉक्टर उस्माली को भी बाय द वे पाकिस्तान की तरफ से, तो यू नो मेरे ख्याल में